Hello, all the students of ninth class. This time you are going to be taught the first chapter of your English book Beehive, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. The story is set in future, and in this story it is described that how the heavy dependence on technology in modern education system has taken place, and the social and formative part of education has lost. This is the story of the two young students, Tommy and Margie, who live in 22nd century. They are taught at their home by mechanically driven computer. It can receive their homework, taste it through the slot, and evaluate it within minutes. One day they are surprised to see a book where words are still and the pages can be touched or turned over. When Tommy shows it to Margie, it doesn't make any sense of such an object. Tommy tells her that the book belongs to the earlier centuries, where kids studied differently. In this story, it is said that the heavy dependence on technology has changed a lot in the education system, because social interaction has gone. When Margie knows about this, first of all, she gets confused that how they might be taught. Tommy tells her that the students were taught by the teachers in the earlier ages, and the teachers were human beings, not a machine like us. Actually, Margie hates her school, and more like she hates her mechanical teacher because she has been giving bad performance in the test. When she comes to know that the teachers of the earlier ages were human beings, she gets surprised, and a school where students studied the same thing together doesn't make any sense. As her mother always tells her that one has to learn independently. She imagines that how would it must have felt to have a company of different students sitting together and having conversation. She imagines how they would help each other and have fun together. जैसा कि कहानी का जो हेडिंग है, शीर्षक है, वो लिखा हुआ है द फन दे हैड. तो मतलब फन आप कह सकते हैं, फन मीन्स एंजॉयमेंट, अम्यूजमेंट. तो फन का मतलब हुआ यहाँ पर कि वो मजा जो वो लोग किया करते थे. ये कहानी ऐसे दो बच्चों की है जो कि 22nd सेंचुरी में रह रहे होते हैं, फ्यूचर में रह रहे होते हैं, और इन लोगों की पढ़ाई जो है वो अभी की पढ़ाई से, अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस प्रकार एजुकेशन बच्चों को इम्पार्ट किया जाता है, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट था. कैसे इन फ्यूचर किया जाएगा बच्चों की पढ़ाई, तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होगा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी भविष्य में बच्चों की जो पढ़ाई होगी वो कंप्यूटर के द्वारा होगी. वर्चुअल क्लासरूम, यहाँ वर्चुअल है, तो वर्चुअल क्लासरूम मीन्स द क्लासरूम where online students are taught, or the interaction between the tutors and the teachers has done in the interacted in the learning activities with the help of computer, with the help of the net, that is called the virtual classroom. तो भविष्य का जो क्लासरूम होगा वो इस तरह का क्लासरूम नहीं होगा जिसमें बच्चे एक साथ जो है ना कलेक्टिवली आकर के बैठेंगे. ऐसा नहीं होगा. बच्चे अपने घर में ही जो इक्विप्ड होगा, वेल इक्विप्ड उनका कंप्यूटर से लगा हुआ जो
वाला क्लासरूम होगा जिसपे ऑनलाइन पढ़ाई होगी, तो वर्चुअल क्लासरूम उसको बोलते हैं। फिर कैसे होगा? रोबोटिक टीचर, जो टीचर होगा वो ह्यूमन बींग्स नहीं होगा। इन फ्यूचर, भविष्य में जो टीचर होगा वो एक रोबोट होगा, वो एक मशीन होगा। मूविंग ई टेक्स्ट, और जो पढ़ाई होगी उसमें जो जैसे अभी बुक्स में जो हमारे वर्ड्स हैं वो स्टिल, दे आर स्टिल, दे कांट मूव एंड द पेजेस कैन बी टच्ड और टर्न ओवर। हम छू सकते हैं इसको, मूव कर सकते हैं। लेकिन भविष्य में क्या होगा? हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो टेक्स्ट आएंगे वो मूवमेंट में होगा, वो मूव करेगा। तो इसलिए जो पढ़ाई होगी उसका जो टेक्स्ट होगा वो मूविंग होगा, मूविंग ई टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो ये भविष्य के स्कूल की बात है। इसमें होता यह है कि दो बच्चे रहते हैं, उनको एक पुरानी किताब मिल जाती है। जब वो इस किताब को देखते हैं, जिन दिनों ये किताब प्रचलन में नहीं है और कंप्यूटर से पढ़ाई होती है, तो उनको बहुत आश्चर्य होता है जब वो जानते हैं कि टीचर जो है ना एक जगह कहीं पे रहते थे स्कूल में, वहां पे सारे बच्चे अलग अलग परिवार के आते थे, बैठ के पढ़ते थे। तो वो ये इमेजिन नहीं कर पा रहे कि क्या ऐसा हो सकता है, वो समझ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो मार्गी है वो कह रही है कि कितना मजा करते रहे हम लोग, दैट्स व्हाई द फन दे हैड। मतलब क्या मजा करते होंगे वो लोग। मतलब हम लोग जो है ना बस इंडिविजुअली क्लासरूम में बैठे हुए इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द नथिंग कंप्यूटर, लेकिन बच्चे एक साथ जो है ना बैठते होंगे, आपस में एक दूसरे की मदद करते होंगे और जो है ना बच्चे जो है वो मस्ती करते होंगे, मजा करते होंगे। ये आपका कहानी है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे करके। Margie even wrote about it that night in a diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी उस रात अपनी डायरी में लिखती है, पेज पे डेट डालते हुए 17 में तारीख जो है वो 17 मई की है और वो 22वीं शताब्दी की है, 22nd सेंचुरी की है, यानी यहाँ 2000 नहीं है, 2157 है। तो बहुत आगे की कहानी है वो। तो मार्गी अपने डायरी में उस रात एक पेज पे लिखती है, डायरी एंट्री करती है वो, और उसमें वो लिखती है कि 17 मई 2157 को हमें एक टॉमी को जो है एक सचमुच की किताब मिली। मतलब जो किताब जो हम इस किताब को जो हम समझते हैं, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादाजी एक बार उससे बोले रहते हैं कि जब वो लोग बच्चे थे तो उन लोगों की जो पढ़ाई होती थी, जो कहानियां होती थी, वो सबके सब पेपर पर छपते थे, प्रिंट होते थे, मुद्रित होते थे। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और ये लोग पेज को पलट रहे थे, जो पन्ने थे वो पीले पड़ गए थे, और क्रिंकली का मतलब यहाँ दिया हुआ है आपको मीनिंग, विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस। तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि मुड़ा हुआ, सिलवट पड़ा हुआ। तो किताब जो है वो पीली पड़ गई है पुरानी किताब होने की वजह से, उसके पन्ने जो है वो मुड़े हुए हैं, और सचमुच में उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा है क्योंकि वो सब मूव नहीं कर रहे हैं, प्रिंटेड है, एक जगह पे फिक्स्ड है। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब वो लोग पेज को पलटते हैं तो फिर यूं का त्यों शब्द यूं का त्यों ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, वो मूव नहीं करता है, वो हिलता नहीं रहता है, मूवमेंट उसमें नहीं है, गति नहीं है, प्रिंटेड है वो। G said Tommy बोला मार्गी से, "What a waste! When you were through with the book, you just throw it away." ये तो एक बर्बादी है, जब तुम किताब पढ़ लेते हो तो किताब को तुम फेंक देते हो। I guess our television screen must have had 1 million books on it and it goods for plenty more. टॉमी कहता है, मेरा तो ये अनुमान है कि हम लोगों के टेलीविजन स्क्रीन पे यानी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जो शब्द आते हैं वो उसमें 1-2 किताबें नहीं है, बल्कि लाखों की संख्या में किताबें जो है ना उस स्क्रीन पे दिखती हैं, और बहुत काफी कुछ सीखने को मिलता है, बहुत काफी चीजें हैं। I won't throw it away, मैं तो इसको कभी नहीं फेंकूंगा। Same with mine, said मार्गी बोलती है, मैं भी, मेरे साथ भी वही है, मैं भी वही करूंगी, मैं अपने कंप्यूटर को कभी भी नहीं फेंकूंगी। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had.
मार्गी जो रहती है वो 11 साल की रहती है, तो वो अभी उतनी किताबों को नहीं देखी रहती है जितना कि टॉमी पढ़े हुए रहता है, देखे हुए रहता है, क्योंकि टॉमी उससे 2 साल बड़ा है, वो 13 ईयर्स का है। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? वो बोलती है कि तुम्हें ये कहाँ मिली, ये किताबें तुम्हें कहाँ मिली? इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना उसकी तरफ देखे हुए बोलता है मेरे घर में, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो किताब पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, वो बोलता है कहाँ पे मिला, तो वो बोलता है एटिक। एटिक मतलब अटारी है ना, एटिक को मतलब स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। तो सामान रखने का जो कमरा होता है, स्टोर रूम होता है, उसके ऊपर जो एक छत होता है नैरो पतला सा, उसको हम एटिक बोलते हैं, हिंदी में हम अटारी कह सकते हैं। व्हाट्स इज अबाउट? वो पूछती है किस चीज के बारे में है ये? स्कूल। टॉमी बोलता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मीनिंग आप कंटेम्प्टफुल बोल सकते हैं, तिरस्कारपूर्ण, तानापूर्ण, तो घृणापूर्ण। तो मार्गी जो है वो थोड़ा घृणा दिखाती है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में क्या लिखने वाली ऐसी बातें हैं? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, मुझे घृणा है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी जो थी शुरू से ही हमेशा ही स्कूल से नफरत करती थी, घृणा करती थी, लेकिन अभी वो कुछ ज्यादा कर रही है। The mechanical teacher had been giving a test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and said, "Father, Pandey inspector." उसका जो मैकेनिकल टीचर है यानी उसका जो कंप्यूटर है वो उसको टेस्ट देते जा रहा है ज्योग्राफी में, और वो बार बार बद से बदतर उसके परफॉर्मेंस जो है वो आ रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं कर रही है। उसकी माँ जो है दुखी होकर के अपने सिर हिलाती है और वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाती है। काउंटी इंस्पेक्टर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रिपेयरिंग पर्सन है, जो मैकेनिक है, जो उस कंप्यूटर को ठीक कर सकता है, उसको यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर से रेफर किया गया है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वो छोटे और गोल सिर का आदमी है जिसका चेहरा लाल है, और वो जो है पूरे औजार, डायल्स, तार के साथ अपना बॉक्स लेकर के आता है। ये स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव एन एप्पल। वो मार्गी को देख करके मुस्कुराता है और उसको एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद उसके टीचर को अलग कर देता है, मतलब उसके कंप्यूटर के पार्ट को वो डिसइंटीग्रेट करता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ये सोचती है कि काश जो है ना ये इन चीजों को यानी मशीन को, मेरे कंप्यूटर को ठीक ना कर सके। बट ही न्यू ऑल राइट, लेकिन वो जानता था, काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिक सब कुछ को अच्छी तरह से वो जानता था कैसे इसको सही करना है, ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर सो देयर वाज अगेन, और ठीक आधे घंटे के बाद उसका जो कंप्यूटर होता है वो सही हो गया रहता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। बड़ा सा काला सा जिसके पर्दे पर, स्क्रीन पर सारे के सारे उसके पार्ट आने लगे थे, क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। That wasn't so bad, हालांकि वो इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्गी को कंप्यूटर के जिस पार्ट से, जिस हिस्से से घृणा थी, नफरत थी, वो था वो स्लॉट, वो जगह जहां पे उसके कंप्लीट किए गए होमवर्क को रखा जाता था असेसमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old and mechanical teacher calculated the marks in no time. शुरू से ही जब 6 साल की थी तभी से उसको पंच सीट जो था उसमें उसको लिख करके क्वेश्चन को स्लॉट में डालना पड़ता था, और उसके मार्क्स बहुत ही कम समय में टेस्ट के आ जाया करते थे कंप्यूटर के द्वारा इवैल्यूएट होकर के। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर जो है जो अपना काम समाप्त कर लेता है, काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिक, तो मार्गी के सर को थपथपाता है प्यार से। He said to her mother, और वो उसकी माँ को कहता है, It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was here a little too big. कहता है मार्गी के माँ से, मम्मी से, कि ये इस छोटी सी लड़की की गलती नहीं थी श्रीमती जोन्स। मुझे लगता है कि इसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा फास्ट हो गया था, वो थोड़ा तेज हो गया था, तो उसको मैंने एक विशेष स्तर तक, जो उसका क्लास का जो लेवल है उस क्लास तक मैंने उसको एडजस्ट कर दिया है। Those things happen sometimes, तो ऐसा कभी कभी होता है। I have so reached up to an average 10 years level, तो मैंने 10 साल की उम्र का जो स्तर है बच्चों की जो पढ़ाई
के स्तर तक का, लेवल तक का मैंने उस ज्योग्राफी सेक्टर को फिक्स कर दिया, एडजस्ट कर दिया, जो कि थोड़ा फास्ट हो गया था, तेज हो गया था और उसके लेवल से ऊपर जा रहा था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, और वास्तव में जो कुल मिलाकर के इसके परफॉर्मेंस को, इसकी कार्य क्षमता को देखें तो बहुत ही अच्छा कर रही है, संतोषप्रद है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो फिर से एक बार मार्गी के सर को प्यार से थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, वो ये उम्मीद की रहती है कि वो उसी टीचर को क्वांटी इंस्पेक्टर मैकेनिक अपने साथ लेके जाएगा घर पे ठीक करने के लिए। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार टॉमी के टीचर को करीब करीब 1 महीने तक बाहर ठीक करने के लिए ले जाया गया था, क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो पूरा का पूरा खाली हो गया था, इरेज आउट हो गया था उसके डाटा, जो भी डेटा रहे होंगे। So she said to Tommy, तो इसलिए वो टॉमी से कही बोली, Why would anyone write about a school? क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है, क्यों लिखेगा कोई, क्यों लिखता है? टॉमी आस्क्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी जो है ना उससे पूछता है अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए, श्रेष्ठता भरी नजरों से, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो बोलता है टॉमी मार्गी को कि अरे मूर्ख, ये हम लोगों के जैसे स्कूल की बात नहीं है, हम लोगों का जैसा स्कूल है, हम लोग जिस तरह से पर्सनल क्लासरूम में पढ़ते हैं इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली, ऐसा वो स्कूल उस जमाने में नहीं हुआ करता था। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ये उस स्कूल की बात हो रही है जो बहुत सालों लाखों साल पहले की बात है, सैकड़ों सालों पहले की बात है, hundreds of years. He added loftily, वो पूरे सजता दिखाते हुए गर्व भरे शब्दों में गर्व के साथ कहता है, pronouncing the word carefully, centuries ago, और बहुत ही सावधान होते हुए फिर से जोर देते हुए उस शब्द को बोलता है वो, centuries ago, मतलब शताब्दियों पहले की बात है। मार्गी was hurt, मार्गी दुखी हो जाती है। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. वो बोलती ठीक है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरह के स्कूल उतने साल पहले हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while. वो उसके कांधे के ऊपर से आकर के थोड़ी देर के लिए किताब को पढ़ती है। Then added, anyway they had a teacher. अच्छा, तो उनके पास एक शिक्षक भी था। Turn over your page, come to the next page. So they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. टॉमी बोलता है हाँ बेशक उन लोगों के पास एक शिक्षक भी होते थे उन दिनों, लेकिन वो शिक्षक रेगुलर टीचर जो हम लोगों का जो अभी के समय के जो शिक्षक है, जो कंप्यूटर है, जो मैकेनिकली ड्रिवन जो कंप्यूटर है टीचर है, वैसा नहीं होता था, वो ह्यूमन बीइंग होता था, वो इंसान होता था। अब मैं हाउ कुड अ मैन बी टीचर, हमारी सरप्राइज होती है, आश्चर्य होता है उसको कि एक मनुष्य कैसे शिक्षक हो सकता है, क्योंकि उसने अब तक मनुष्य को पढ़ाते हुए तो देखा नहीं था, मशीन को पढ़ाते हुए देखा था। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो बोलता है ठीक वैसे ही जैसे लड़के लड़कियां पढ़ते हैं चीजों को, होमवर्क मिलता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे वो भी होमवर्क ग्रीन कार्ड दिया करते थे और सवाल पूछते थे। A man isn't smart enough. आगे बोलती है इंसान तो उतना बुद्धिमान होता नहीं, उतना तेज तो होता नहीं, तो वो कैसे शिक्षक बन सकता है? Sure he is. My father knows as much as my teacher. टॉमी बोलता है बेशक वो हुआ करते थे, क्योंकि मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा शिक्षक, यानी जितना मेरा कंप्यूटर जानता है। He knows almost as much as a teacher. वो करीब ठीक उतना ही जानता है जितना मेरा कंप्यूटर जानता है, और मैं इसको शर्त के लगा के बोल सकता हूँ। आई बेचर जो शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इस सेंटेंस का कि आई बेच यू मतलब मैं बाजी लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ, मतलब मैं श्योरली कहता हूँ कि शिक्षक जो है वो उतने ही बुद्धिमान हुआ करते थे, उतने ही ज्ञानवान हुआ करते थे जितना कि एक कंप्यूटर होता है। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी, बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, वो बोली, आई वोंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जोर जोर से हंसने लगा, चीखते हुए हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुमको बहुत इसके बारे में पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, शिक्षक घर में नहीं रहा करते थे, घर में आके नहीं पढ़ाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल देयर किड्स वेंट देयर, उन लोगों का एक विशेष घर होता था, भवन होता था, जहां पे सारे बच्चे जाया करते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज की पढ़ाई करते थे।
श्योर इफ दे वी आर द सेम एज, बेशक अगर वो सबके सब एक उम्र के होंगे तो पढ़ेंगे एक चीज। बट माई मदर सेज द टीचर हैज टू बी ट्रस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ कहती है कि शिक्षक को बच्चों के दिमाग के अनुसार ही होना चाहिए या फिर रहना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बच्चे को अलग अलग उसकी दिमागी क्षमता के अनुसार पढ़ा सके। जस्ट द सेम दे नीड टू इट वर्क दे within, if you don't like it you don't have to read the book। ठीक ऐसे ही उन दिनों भी हुआ करता था, अगर तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है तो किताब ना पढ़ो, मतलब किसी दूसरे एक्टिविटीज में शिक्षक बच्चों को कार्यरत कर दिया करते थे, लगा दिया करते थे। I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly, मार्गी शीघ्रता से बोलती है, मैं ये नहीं कहती कि मुझे ये पसंद नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। She wanted to read about those funny schools, वो चाहती थी उस जमाने के मजेदार विद्यालयों के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए। They weren't even half finished even when Margie's mother called, अभी वो आधा भी नहीं पढ़े होते हैं तभी मार्गी की माँ बुलाती है, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, तुम स्कूल मतलब अपने रूम में जाओ पढ़ने के लिए। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर की तरफ देखती है, नॉट येट मम्मा, वो बोलती है मम्मी अभी नहीं, मतलब अभी समय है। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, श्रीमती जोन्स बोलती है अब समय हो गया है शायद टॉमी के भी पढ़ने का, तो इसलिए तुम भी जाओ पढ़ने। मार्गी से टू टॉमी, मार्गी टॉमी से बोली कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में क्या मैं कुछ और देर तक तुम्हारी किताब को पढ़ सकती हूँ? मे बी, ये सेड नॉनचैलेंटली, नॉनचैलेंटली का मतलब उदासीनता से, लापरवाही से ज्यादा ध्यान देते हुए नहीं, वो बोला कि हो सकता है, मतलब तुम पढ़ सकते हो। He walked away whistling the dusty book ओल्ड बुक tucked beneath his arm, और इस तरह से वो सीटी बजाता हुआ निकल जाता है और धूल से भरा हुआ उस पुरानी किताब को अपने बाँव में दबाए हुए। मार्गी went into the school room, मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। It was right next to her bedroom, और वो उसके बेडरूम के ठीक आगे वाला कमरा होता है। And the mechanical teacher was on and waiting for her, तो मैकेनिकल टीचर है, जो मशीन है, जो कंप्यूटर है उसका, वो उसकी प्रतीक्षा में उसका इंतजार कर रहा होता है। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, प्रत्येक दिन वो ऑनलाइन उसकी पढ़ाई होती रहती है, सिर्फ शनिवार और रविवार उसकी पढ़ाई नहीं होती है। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours, क्योंकि उनकी माँ का कहना था कि छोटी लड़कियां जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, वो एक नियमित अंतराल पे पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई अच्छी होती है, वो सीख पाते हैं जल्दी से, सही से। The screen was lit up and it said, स्क्रीन ऑन हो जाता है, उस पे ये लिखा हुआ आता है Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction, आज का जो अंक गणित का जो पार्ट है वो proper fraction से संबंधित है, उसके जोड़ से संबंधित है। Please insert studies homework in the proper slot, कल का जो होमवर्क है वो जो उचित जो खास स्थान है वहां पे डाल दो, रख दें। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी जो ना आ भरते हुए, मतलब खुशी नहीं दिखाते हुए, आ भरते हुए मजबूरी के साथ अपने होमवर्क को उस स्लॉट में रख देती है। She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy, वो उस पुराने स्कूल के बारे में सोचती रहती है जब उसके दादाजी जब छोटे बच्चे थे, मतलब बहुत साल पहले की बात, 150 साल पहले, जब वो अलग तरह से पढ़ाई करते थे। All the kids from whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, सारे बच्चे अलग अलग घरों से आते थे हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के अहाते में। Sitting together in the school room, और सबके सब बच्चे जो ना स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। Going home together at the end of the day, और स्कूल की समाप्ति के बाद, दिन की समाप्ति पे सारे बच्चे स्कूल घर जाया करते थे। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talked about it. सबके सब बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे जिसकी वजह से वो एक दूसरे के होमवर्क में मदद भी कर सकते थे, कर पाते थे, करते रहे होंगे और बात करते रहे होंगे इसके बारे में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और शिक्षक जो थे वो लोग हुआ, इंसान हुआ करते होंगे, वो सिर्फ ये सब सोच रही होती है वो। द मैकेनिकल टीचर वाज फिनिश्ड ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर होता है वो स्क्रीन पे ये कहते हुए समाप्त करता है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 लाइक दैट, तो वो बोलता है कि हम लोग जब जोड़ते हैं 1/2 और 1/4 को, फिर आगे वो कंटिन्यू करता है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी ये सोच रही होती है उस समय कि पुराने जमाने में कैसे बच्चे उन दिनों प्यार के साथ पढ़ते होंगे, रहते होंगे। She was thinking about the fun they had, और वो ये सोच रही होगी कितना वो लोग मजा करते होंगे। ये मार्गी जो सोच रही होती है कि
कितना मजा किए होंगे वो लोग, करते रहे होंगे वो लोग, करते थे। इसी वजह से इसका जो हेडिंग है वो द फन दे हैड है, क्योंकि वो अब मिस कर रही है, उसको वो चीज अब नहीं मिल पा रहा है। वो इंडिविजुअली जो है ना, जो सोशल और जो फॉर्मेटिव जो पोर्शन है एडुकेशन का, वो उसको नहीं मिल रहा है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन उसका नहीं हो पा रहा है। तो भविष्य में आने वाले समय में जो इस तरह की स्थिति बनेगी जिसमें बच्चे जो है वो सामाजिकता, सामूहिकता की जो बात होती है, उसमें जो सीखने वाली जो बात होती है वो उन लोगों को नहीं मिलेगी, इसी के ऊपर है ना एक तरह का ये कहानी बनाया गया।